حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب ان کی والد نے آپ کی شادی کروائی تو شادی کی پہلی رات آپ نے نئی دلہن کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بجائے ساری رات عبادت میں گزاری۔ صبح جب دائی نے دلہن کے بارے میں خبر لی تو اس نے بتایا کہ دلہن ویسے ہی پاک اور کنواری حالت میں ہے۔ جب اس بارے میں حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے تھے، علم لدنی کے حامل تھے، اور ان کا مقصد دنیاوی زندگی میں مشغول ہونا نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت اور بندوں کے لیے سبق آموز تجربات پیش کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر ان کی حکمت اور اللہ کی منصوبہ بندی کا روشن نمونہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں شادی یا ازدواجی تعلقات کا ذکر بہت کم ملتا ہے، کیونکہ ان کا مشن اللہ کی رضا حاصل کرنا اور بندوں کو اللہ کی حکمت سمجھانا تھا۔ وہ دنیاوی تعلقات یا خواہشات کو وقت کا ضیاع سمجھتے تھے اور اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع کر کے روحانی سفر اور رب کی ہدایت کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا تاکہ ظالم بادشاہ غریب لوگوں کی کشتی نہ چھین سکے۔ ایک نوجوان کو اللہ کے حکم سے اس لیے موت دی کہ وہ والدین کے ایمان کے خلاف بڑا فتنہ نہ بنے، اور یتیم بچوں کے لیے دیوار کی مرمت کی تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ یہ تمام واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی اللہ کی حکمت کے تابع تھی اور ہر عمل ایک مقصد کے لیے ہوتا تھا۔ ان کی غیر ازدواجی زندگی کا پہلو بھی اسی حکمت کا حصہ تھا تاکہ کوئی دنیاوی تعلق ان کے عظیم مشن کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے جو بظاہر انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے، مگر ہر عمل میں اللہ کا حکم اور اس کی گہری حکمت پوشیدہ ہوتی تھی۔ وہ دنیاوی الجھنوں سے دور رہ کر بندوں کے لیے سبق آموز تجربات پیش کرتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی ذمہ داریاں عام انسانوں سے بلند ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضا اور بندوں کی ہدایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی روحانی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کا اصل مقصد دنیاوی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کے احکام اور بندوں کی بھلائی ہے۔ ہر عمل چاہے ابتدا میں سمجھ نہ آئے، اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اسی حقیقت کی روشن مثال ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبی و صالحین کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے وقف تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور تاریخ کی معتبر کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل کم ملتی ہے، مگر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں آپ کا ذکر نہایت احترام اور عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ بائبل میں بھی صحیفہ زکریا کے نام سے ایک باب موجود ہے، لیکن وہ وہی زکریا نہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں جن حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں، اسی نسبت سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک نہایت روحانی شخصیت تھے۔ انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے، جو بنی اسرائیل میں ایک مقدس مذہبی عہدہ تھا اور جس کی ذمہ داری بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی عبادات و رسومات کی نگہبانی تھی۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق آپ کے والد کا نام برخیہ تھا۔ حضرت ابو القاسم ابن عساکر نے بھی اپنی کتاب میں یہی نام ذکر فرمایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتے تھے۔ اس بات کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کرام نے اپنی معیشت کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو اختیار کیا اور اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی۔ وہ اپنے مشن کی تبلیغ کے بدلے کبھی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اعلان کرتے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی، سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی اور لباس کے لیے جانوروں کی کھالوں سے سترپوشی تیار کی۔ یہ تمام کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیت علیہ السلام نے تعمیرات کا آغاز کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بائبل کے مطابق سب سے پہلے بستیاں حضرت شیت علیہ السلام نے ہی آباد کی۔
हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तारीखी कश्ती तैयार की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बनाना, नाप तोल और असलहा साजी का तरीका ईजाद किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ तामीरात में भी माहिर थे। दोनों ने मिलकर बैतुल्लाह की तामीर की, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी तैयार करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट, बकरियां और भीड़ें पालते थे और उन्हीं के दूध से अपनी माश कमाते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद बकरियां चुराया करती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चुराते थे और आपके निकाह के मोहर में भी बकरियां चराना शामिल था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने लोहा नरम फरमा दिया था। वो अपने हाथ से जरहें और जंगी साजो सामान तैयार करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीम उश्शान सल्तनत के मालिक थे, लेकिन फुर्सत के वक्त अपने हाथ से पंखे तैयार करते थे। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बचपन में बकरियां चराएं। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी वालदा ने अपनी नजर पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम को बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया। वहां मस्जिद के खादिम, मुजाविर और काहिन मौजूद थे, जिनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि मैं इस बच्ची के मुताल्लिक नजर मान चुकी हूं और अब ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास ही रहेगी। चूंकि वो हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थीं, जो मस्जिद के इमाम और रूहानी बुजुर्ग थे, इसलिए हर शख्स चाहता था कि बच्ची की कफालत इसे मिले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दलील दी कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं और खाला भी माँ की जगह होती है, इसलिए इस बच्ची की परवरिश का हक उन्हें हासिल है। दीगर अफराद राजी ना हुए तो कुरा अंदाजी की गई और तीनों मर्तबा कुरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला। यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बच्ची की परवरिश का हक दिया। अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त बना दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत और शौक से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू कर दी। कुरान करीम के 19वीं पारे की सूरह मरियम में परवरदिगार आलम इस वाक़े का यूं जिक्र फरमाता है कि ये है तेरे रब की रहमत का बयान जो उसने अपने बंदे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की। जब उन्होंने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की, उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सर में बुढ़ापा छा गया है, लेकिन मैंने कभी भी तुझसे दुआ मांगी तो मायूस नहीं हुआ। मुझे अपने बाद अपने कराबतदारों की फिक्र है और मेरी बीवी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन बने। और ऐ मेरे रब, तू उसे अपना पसंदीदा बंदा बना ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया है। हमने उससे पहले किसी को यह नाम नहीं दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरे यहां लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहाई कमजोरी को पहुंच चुका हूं। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि बावजूद सही और सालिम होने के तुम 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकले और अपनी कौम की तरफ इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते रहो। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ से पहले अपनी कमजोरी और हाजतमंदी का जिक्र किया। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि दुआ के वक्त अपनी कमजोरी का जिक्र कबूलियत के करीब तर होता है और उलमा का कहना है कि दुआ में पहले अल्लाह की नेमतों का एतराफ और अपनी हाजत का इजहार करना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि दुआ में अपनी हाजतमंदी का बयान मुस्तहब है। बनी इसराइल ने पहले आपके साहबजादे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आपको भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। नाजरीन, एक बड़े मुल्क का बादशाह था जिसका एक ही बेटा था। उसका नाम हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम था। जब हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बादशाह को ख्याल आया कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूं ताकि नस्ल आगे बढ़े। लेकिन हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हमा वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहते थे और दुनियावी मसरूफियात से हमेशा दूर रहते थे। उनको दुनियादारी की कोई परवाह न थी, न ही शादी से कोई दिलचस्पी थी।
मगर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के वालिद ने जबरदस्ती निकाह करवा दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की शादी एक निहायत हसीन और जमील लड़की से की गई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इस रिश्ते से खुश न थे। शादी की पहली रात भी आप अलैहिस्सलाम ने बीवी की तरफ कोई तवज्जो न दी और पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दी। सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा राज किसी पर जाहिर न करना, जो पूछे उसे कह देना कि सब मामलात ठीक रहे हैं। लड़की ने वादा निभाया, मगर लोगों ने उस पर यकीन न किया। उन्होंने शक जाहिर किया कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने बीवी की तरफ देखा ही नहीं। जब लड़की को दाई के पास चेक करवाया गया तो उसने भी कहा कि लड़की अभी बाकरा है। दाई ने वालिद को मशवरा दिया कि आपके बेटे को शायद बाकरा औरत में दिलचस्पी नहीं, इसलिए गैर बाकरा औरत से निकाह करवा दें। वालिद ने इसी मशवरे पर पहली बीवी को तलाक दिलवाकर दूसरी शादी करवा दी। मगर दूसरी रात भी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने इबादत ही में गुजारी। सुबह पूछा गया तो उस औरत ने भी कह दिया कि ये लड़का मर्द नहीं है। ये सुनकर वालिद ने गुस्से में सजा देने का फैसला किया और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बंद करवा दिया। दरवाजा चूने और पत्थर से पुर करके सैल कर दिया। 2 दिन गुजर गए। फिर वालिद के दिल में बेटे की मोहब्बत जागी और कमरा खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो सब हैरान रह गए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वहां मौजूद ही न थे। ये देखकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई। वालिद को जब ये खबर मिली कि मैं अपने बेटे के वजूद से महरूम हो गया हूं, तो उसने बड़े अफसोस और परेशानी के साथ हर जगह तलाश की, मगर मुल्कान अपने बेटे को ना ढूंढ सका। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से वहां से निकलकर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए। आप अलैहिस्सलाम उनके साथ बहरे जुलमात तक पहुंचे और वहां आबे हयात नोश किया और हमेशा की जिंदगी के मालिक बन गए। अल्लाह ताला ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को यह मोजज़ा अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाओं पर इख्तियार दे दिया। चुनाचे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम एक समंदर के करीब रिहाइश पजीर हो गए। एक दिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम एक जजीरे में नमाज अदा कर रहे थे कि इतने में 2 ताजिर जो एक हादसे के बाद भटक कर इसी जजीरे पर पहुंच गए थे वहां आ गए। जब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इबादत से फारिग हुए तो ताजिरों ने अपना हाल बयान किया। दोनों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया था। उन्होंने अपनी मुश्किल बताई तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक शर्त पर मदद करूंगा, अपने मुल्क जाकर किसी से भी मेरा जिक्र नहीं करोगे। दोनों ने वादा किया कि किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने समंदर की लहरों को हुक्म दिया कि इन लोगों को फलां साहिल तक पहुंचा दो, और फौरन समंदर की लहरों ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। अपने मुल्क पहुंचकर एक आदमी वादे पर कायम रहा, मगर दूसरा वादा ना निभा सका। वो सीधा हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के वालिद मुल्कान के पास गया और पूरी मुलाकात का वाकया सुना दिया। उसने ये भी बताया कि मेरे साथ एक और ताजिर था। जब बादशाह ने दूसरे ताजिर को बुलाया तो उसने कहा कि यह शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानता भी नहीं। पहले ताजिर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये झूठा है, इसे अभी कैद करवा दें और मेरे साथ चंद आदमी भेज दें, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। चुनाचे बादशाह ने अपने आदमी उस ताजिर के साथ जजीरे की तरफ रवाना किए, मगर जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को बहुत तलाश किया। बादशाह के आदमी बहुत तलाश के बाद नाकाम वापस लौट आए और आकर पूरा वाकया बयान कर दिया, जिस पर बादशाह ने पहले आदमी को रिहा कर दिया और दूसरे को कैद कर लिया। इत्तेफाकन इसी शहर पर एक बहुत बड़ी तबाही नाजिल हुई, क्योंकि वहां के लोग सख्त गुनाहगार थे। इस तबाही ने सवाए 2 लोगों के पूरे शहर को उजाड़ दिया। एक वो कमारी औरत जिसने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का राज फाश नहीं किया था, और दूसरा वो ताजिर जिसने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से क्या हुआ वादा पूरा किया था। जब ये दोनों बच जाने वाले लोग एक दूसरे से मिले तो उन्होंने बातचीत की और एक दूसरे को बताया कि हमने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का राज कभी फाश नहीं किया था। फिर दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और उस तबाहशुदा मुल्क से हिजरत करके किसी और बस्ती में जा बसे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मोजज़ाना वाकया है, जिसका जिक्र कुरान मजीद और इंजील दोनों में मिलता है। वो पाकीज़ा माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में पैदा हुए। हजरत मरियम एक नेक और परहेजगार खातून थी। उनका नसब हजरत इमरान और हाजरा से मिलता है। अल्लाह ताला ने उनको बचपन में ही खुसूसी बरकत दी। हजरत मरियम को फरिश्तों की तरफ से पैगाम मिला कि वो एक बेटे की मां बनेंगी, हालांकि इन्होंने कभी किसी इंसान के साथ निकाह नहीं किया। ये सब कुछ अल्लाह की मर्जी और कुदरत के मुताबिक हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल लहम के करीब हुई। जब हजरत ईसा पैदा हुए
तो हजरत मरियम पर फख्र और शुक्र की कैफियत छा गई। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद वो मौजज़ाना तौर पर बात करने लगे और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे हिदायत दी गई है और मुझे पैगंबर बनाया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही हिकमत और इल्म में कमाल हासिल किया। वो अवाम में अदलो इंसाफ और अल्लाह की तालीमात लेकर आए। मोजज़ात भी उनकी पहचान थे। वो मुर्दा को जिंदा करते, बीमारों को शिफा देते, अंधों की आंखें खोलते और अल्लाह के हुक्म से दीगर मोजज़ात जाहिर करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करने की तालीम दी और लोगों को जुल्म और सितम से बचाने की कोशिश की। उनकी जिंदगी में फ़कीरों और मिस्कीनों की मदद, इंसाफ और अखलाकी इस्लाह को खास अहमियत दी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत, लोगों की रहनुमाई और तालीमात को फैलाना था। वो एक साफ और मुक़द्दस जिंदगी गुजारने वाले नबी थे। उनके कलिमात और आमाल आज भी लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। आखिर में अल्लाह ने उनको जमीन से उठा लिया और ये वादा किया कि वो दोबारा आएंगे। हजरत ईसा की जिंदगी और तालीमात आज भी तमाम इंसानियत के लिए रोशन रास्ता हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसा मोजज़ा थी जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को हैरत में डाल दिया। ये वाक़या बैतुल्लहम के करीब पेश आया, जब फरिश्तों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया कि वो एक पाकीज़ा बेटे की मां बनेंगी और ये बेटा न सिर्फ इंसानियत के लिए रहमत बल्कि अल्लाह का मुंतखब पैगंबर होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाकबाज और नेक खातून थीं, जिनकी जिंदगी इबादत और परहेजगारी में गुजरी। उनके वालिद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम और वालिदा हजरत हना की नेक और परहेजगार जिंदगी ने भी हजरत मरियम की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ाना तौर पर बात शुरू की और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे हिदायत दी गई है और मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं। ये वाक़या इस बात की गमाज़ी करता है कि अल्लाह की कुदरत में कोई रुकावट नहीं। बचपन से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में हिकमत और इल्म का शगुफा नजर आया। वो बच्चों में भी दूसरों की रहनुमाई करते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ाना तौर पर मिट्टी के एक टुकड़े से परिंदा बनाया और अल्लाह की इजाजत से उसे जिंदगी दी। ये वाक़यात जाहिर करते हैं कि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के मौजज़ाती पैगंबर थे। नौजवानी में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत और दुआ के मौक़े आम लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया थे। वो लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ दोनों पैदा करते, अदालत, नेकी और रहमदिली की तालीम देते। हर जगह वो लोगों को जुल्म सितम, शिर्क और फरेब के खिलाफ खबरदार करते और अपनी तालीमात के जरिए इंसानों को रोशन रास्ता दिखाते। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा हासिल करने और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और लोगों को हिदायत देना था। उनके शागिर्द भी उनकी तरबियत में शामिल थे और उन्होंने अल्लाह के रस्ते में काम करने की जिम्मेदारी संभाली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में मुर्दा को जिंदा करना, बीमारों को शिफा देना, अंधों की आंखें खोलना और अल्लाह के हुक्म से दीगर अजायब शामिल थे। उनके अल्फाज और आमाल आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई और ईमान की रोशनी है। आखिर में अल्लाह ने उन्हें जमीन से उठा लिया ताकि वो दोबारा आएं और दीन हक को कायम करें। हजरत ईसा की ये जिंदगी और तालीमात आज भी हर इंसान के लिए रोशन और सबक आमोज हैं। जैसे जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उनकी हिकमत और इल्म में इजाफा होता गया। बचपन के मोजज़ात के बाद नौजवानी में भी वो अल्लाह की मारिफत और लोगों की रहनुमाई के लिए मशगूल रहे। यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में उनकी तालीमात फैलने लगी। लोग उनकी बातों से मुतासिर होते और उनके अखलाक और किरदार की तारीफ करते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करने की तालीम दी। उन्होंने शिर्क, जुल्म, झूठ और फरेब के खिलाफ लोगों को खबरदार किया। नौजवानी में उन्होंने शागिर्दों की तरबियत शुरू की, जिनमें कई ऐसे नौजवान शामिल थे जो बाद में उनके मिशन को आगे ले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शागिर्दों के साथ बैठकर उन्हें इबादत, अखलाक, सब्र और लोगों के साथ हुस्न सुलूक की तालीम देते। पहाड़ों पर जाकर दुआएं पढ़ना और लोगों को नसीहत देना उनका मामूल था। उनके शागिर्द उनके हर अमल से सबक हासिल करते और उनके मोजज़ात देखकर ईमान में मजबूत होते।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مریضوں کو شفا دی، بیماروں کو صحت دی، اندھوں کی آنکھیں کھولی اور اللہ کے حکم سے دیگر حیران کن معجزات دکھائے۔ ایک بار انہوں نے ایک چھوٹے گاؤں میں زخموں اور بیماریوں سے متاثر لوگوں کی مدد کی۔ سب حیران رہ گئے کہ کس طرح ایک نوجوان نے اللہ کی طاقت کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غربت اور محرومی کے شکار لوگوں کی مدد پر بھی خاص توجہ دی۔ وہ خود سادہ ٹیکنالوجی گزارتے اور لوگوں کو دکھاتے کہ دنیاوی خواہشات اور دولت کی پیروی کے بجائے نیکی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا سب سے اہم ہے۔ ان کے شاگرد بھی اسی اصول پر عمل کرتے اور اپنی زندگی میں نیکی، انصاف اور عبادت کو ترجیح دیتے۔ ان کی تعلیمات میں صبر، شکر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا بنیادی جزو تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین بھی ان کی مقبولیت اور تعلیمات سے پریشان تھے۔ کچھ نے ان کے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی اور وہ اپنے مشن کو جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ ان کے یہ معجزات اور تعلیمات لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے، انہیں امید اور رہنمائی فراہم کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی محبت اور خوف دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم آج بھی ہر انسان کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ نوجوانی اور ابتدائی تبلیغ کے یہ واقعات حضرت عیسیٰ کی زندگی کے سب سے اہم مرحلے میں شامل ہیں، جو بعد کے معجزات، یروشلم میں تعلیمات اور شاگردوں کے ساتھ تعلقات کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔